Hello everyone, greetings to all of you. This is Lokesh and you are watching LTC Tutorials. So, our today's video will be based on the interesting topic of biology and the topic is tissues. I consider that you all have some basic knowledge about cells. So, without wasting more time, let's just start our topic. The headings that we are going to discuss today in the first part of this video are basic explanation of cells, what are tissues, what are plant tissues, and at last types of plant tissues. So, in your previous classes, you all have studied about cells. So, the cell is nothing but the basic structural, functional, and biological unit of all living organisms. A cell is the smallest unit of life. That is why it is called building blocks of life. Different types of cells in living organisms perform different types of functions. For example, if we talk about cells present in stomach, so these cells perform a specific function of digestion. And if we talk about the cells present in kidney, so these cells perform a specific function of excretion. There are millions of living organisms present on earth. Some organisms are made up of single cell, whereas some are made up of many cells. So the organisms which are made up of only one cell is called unicellular organisms, and the organisms which are made up of more than one cell are called multicellular organisms. A single celled organisms perform different types of necessary functions. Like if we take an example of an amoeba, so this single celled organisms perform many functions to survive. Like it captures a food with the help of pseudopodia or false feet. It also performs a function of digestion, respiration, excretion, reproduction, and so on. But in multicellular organisms, different types of cells present in different parts of body perform different functions, and according to their functions, different cells have different designs and are of different shapes. In these multicellular organisms, cells are modified to carry out a particular function. These cells are called specialized cells. Now we talk about what are tissues. Students, कभी कभी क्या होता है कि ये स्पेशलाइज्ड सेल्स इंडिविजुअली वर्क करके कोई फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और कभी कभी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स एक साथ मिलकर के किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. तो इन सेल्स के ग्रुप को जो मिलकर एक ही टाइप के कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इन्हें टिश्यूज कहा जाता है. सो द ग्रुप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज. ये जरूरी नहीं है कि एक टिश्यू में जितने भी सेल होंगे वे सारे के सारे एक जैसे होंगे और मिलकर के एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे. मोस्टली क्या होता है कि कुछ ऐसे टिश्यूज भी होते हैं जिनमें सेल्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट सेल्स एक साथ मिलकर कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं. आप सभी ने प्लांट्स के बारे में या प्लांट्स तो देखे ही होंगे. तो प्लांट्स में जाइलम नाम का एक टिश्यू होता है. आप सभी ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास में जरूर पढ़ा होगा. तो इस जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है? जाइलम टिश्यू का काम ये होता है कि वो प्लांट्स की रूट से पानी को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है. ये जाइलम टिश्यू 4 टाइप्स के सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जो कि आपस में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. लेकिन चूंकि ये सेल्स एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस केस में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसलिए ये ग्रुप ऑफ सेल्स जाइलम टिश्यू कहे जा रहे हैं. सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो टिश्यूज उन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. टिश्यूज की कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि मसल टिश्यू और ब्लड टिश्यू. मसल टिश्यू की अगर हम बात करें तो मसल टिश्यू अगर आप देखेंगे तो मसल टिश्यू के जो जितने भी सेल्स होंगे जिनसे वो मसल टिश्यू मिलके बना होगा, वो सारे के सारे कंप्लीटली डिफरेंट होंगे इन द केस ऑफ शेप एंड साइज. मतलब कि उनका शेप और साइज दोनों ही डिफरेंट होगा. तो लेकिन ये एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए ये मसल टिश्यू बन रहा है.
इसी तरीके से ब्लड भी एक तरीके का टिश्यू इसलिए है क्योंकि ब्लड के अंदर भी कई तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लाज्मा भी होता है। तो इन सभी से मिलकर के एक ब्लड बनता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं ये मिल करके कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसीलिए ब्लड को टिश्यू के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट टिश्यूज। सो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स एनिमल्स की तरह शेल्टर की तलाश में या खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक तो घूम नहीं सकते। इसलिए प्लांट्स के टिश्यूज इस तरीके से डिजाइंड होते हैं जो इन्हें सपोर्ट देते हैं, जिससे प्लांट्स एक जगह पर वर्टिकली खड़े हो सकें। प्लांट्स के टिश्यूज इस तरीके से भी डिजाइंड होते हैं जिससे प्लांट्स पर तेज हवा, बारिश, आंधी, सर्दी, गर्मी इन सब का कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ऑल इन ऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लांट्स में स्पेशल टाइप्स के सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि प्लांट्स के टिश्यूज डेड टिश्यूज से बने होते हैं। ये डेड टिश्यूज लिविंग टिश्यूज के कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जब कभी आपने प्लांट्स की स्टेम को टच किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसकी प्लांट की जो स्टेम होती है वो बहुत थोड़ी सी हार्ड हमें दिखती है टच करने में। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि ये जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो मोस्टली डेड टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। और अगर वहीं हम बात करें एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू को अगर हम एनिमल की स्किन को टच करेंगे या अपने ह्यूमन बीइंग में स्किन को टच करेंगे तो वो इतनी हार्ड नहीं होगी। क्यों? बिकॉज हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो डेड टिश्यूज से नहीं बने होते। हमारे जो टिश्यू होते हैं वो लिविंग टिश्यूज होते हैं। ऑलराइट, सो यही रीजन है कि जो प्लांट को अगर हम टच करते हैं तो उनके जो हार्डनेस होती है वो डेड टिश्यूज की वजह से आती है। ऑलराइट, और जो ये टिश्यूज होते हैं, ये जो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, वो मोस्टली डेड टिश्यूज ही होते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ हमेशा लोकलाइज्ड होती है। प्लांट हमेशा टिप से ग्रो करते हैं। सो यहाँ पे लोकलाइज्ड ग्रोथ का क्या मतलब है? तो जैसे कि आपने देखा होगा कई प्लांट में, तो प्लांट ऐसा नहीं कि प्लांट पूरा का पूरा जैसे एक दिन पहले छोटा सा है तो उसके अगले दिन वो पूरा का पूरा बड़ा पेड़ बन गया, ऐसा नहीं होता। प्लांट की ग्रोथ लोकलाइज होने का मतलब ये है कि प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता है और एक फिक्स प्लेस से ग्रो करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो वो कभी स्टेम ग्रो करेगी, फिर कभी उसकी रूट्स ग्रो करेगी, वो धीरे धीरे ग्रो करती है। एक पर्टिकुलर एक स्पेस में वो ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरा एक एज अ होल ग्रो करें जैसा कि ह्यूमन बींग्स में होता है। ह्यूमन बींग्स में वो एक पर्टिकुलर एज अ होल ग्रोथ होती है। ऑलराइट, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स की ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है। सो प्लांट्स के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स ही ग्रो कर पाते हैं। इन स्पेसिफिक रीजन्स में पाए जाने वाले टिश्यूज डिवाइड होते रहते हैं और नए टिश्यूज का फॉर्मेशन होता रहता है। और ये नए टिश्यूज के फॉर्मेशन से प्लांट्स की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। सो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ये जाना था कि प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही ग्रोथ होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स के इन रीजन्स में कुछ खास तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं और नए टिश्यूज का फॉर्मेशन करते रहते हैं। और प्लांट्स में कुछ ऐसे भी रीजन्स होते हैं जहां ग्रोथ नहीं होती है। इन रीजन्स में ग्रोथ ना होने की क्या वजह है? इनकी वजह यह है कि यहाँ कुछ इस तरीके के टिश्यूज पाए जाएंगे जो डिवाइड नहीं होंगे, जिससे इन रीजन्स में नए टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस बेसिस पर हम प्लांट्स के टिश्यूज को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्लांट टिश्यू कहलाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या जिसको कि हम लोग डिवाइडिंग टिश्यू के नाम से भी जानेंगे। और जो सेकेंड है वो है परमानेंट टिश्यू, जिसको कि हम लोग नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। सो प्लांट्स में पाए जाने वाले ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। और आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा है कि ग्रोथ होने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है? सो सेल डिवीजन इज मैंडेटरी इन
ग्रोथ ऑफ एनीथिंग। ऑलराइट, तो इसलिए इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के डिवाइड होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सेल डिवीजन। सो इसी की वजह से प्लांट्स में ग्रोथ होती है। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानने की बात यह है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इमैच्योर सेल्स की ग्रुपिंग से बनते हैं। यहाँ इमैच्योर सेल्स का मतलब क्या है? यहाँ इमैच्योर सेल्स का मतलब ये है कि ये इमैच्योर सेल्स प्लांट्स के अंदर किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फिर उसी तरीके का स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट्स को स्टोमेटा के लिए गार्ड सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ये इमैच्योर सेल्स गार्ड सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और अगर प्लांट्स को रूट हेयर सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ये इमैच्योर सेल्स रूट हेयर सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यही रीजन है कि प्लांट्स अपने पार्ट्स को आसानी से रीग्रो कर लेते हैं। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज लिविंग टिश्यूज which contain actively dividing immature cells and is responsible for plant growth. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को और अच्छे से समझने के लिए चलिए जान लेते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स के वो टिश्यूज होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता रहता है। क्या आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होने वाले सेल डिवीजन की वजह क्या है? तो इनकी सबसे बड़ी वजह है इन सेल्स में पाए जाने वाले न्यूक्लियस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाए जाने वाले सेल्स के न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, और न्यूक्लियस का सबसे मेन रोल क्या होता है? यही होता है कि सेल का डिवीजन करना। इस वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाए जाने वाले सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस का क्या मतलब है? इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है वो स्पेस जो कि टिश्यूज के सेल्स के बीच में पाया जाता है। ऑलराइट, और प्लांट्स के अदर सेल्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स छोटे होते हैं। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म भी बहुत डेंस होते हैं। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में वैक्यूल्स नहीं पाया जाता। क्या आपको पता है कि वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स एक सेल में पाए जाने वाला वो सेल ऑर्गेनेली होता है जिसमें फूड और अदर मटेरियल्स स्टोर्ड होते हैं। चूंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फूड और अदर मटेरियल्स के स्टोरेज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनका जो मेन मोटो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट की ग्रोथ करना होता है। इसलिए इनमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाए जाने वाले सेल्स की सेल वॉल भी बहुत ज्यादा थिन होती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि इनकी सेल वॉल थिन क्यों होती है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, और अभी अभी हमने ये भी जाना कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेल के कंटिन्यूअसली डिवाइड होने की वजह से सेल के अराउंड सेल्यूलोज का डिपोजिशन नहीं हो पाता है, जिससे कि सेल वॉल थिन रह जाती है। और एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बहुत ज्यादा डिवीजन हो जाने की वजह से इसके कुछ सेल्स परमानेंट सेल्स में बदल जाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि प्लांट्स में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए कहाँ जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये टिश्यूज प्लांट्स के हर उस ग्रोइंग पॉइंट्स में पाए जाएंगे, जैसे रूट्स, स्टेम्स और ब्रांचेस की टिप्स में पाए जाते हैं। ये स्टूडेंट्स, अगर प्लांट्स के ग्रोइंग पॉइंट्स की लोकेशन के बेसिस पे देखा जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप्स से क्लासिफाई किए जाएंगे। फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड वन इज intercalary meristem, and the third one is lateral meristem. Apical meristem is nothing but apical meristem roots और shoots की tips में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें root apical meristem और shoot apical meristem बोला जाता है। Apical meristems plants की tips में से vertical growth होने के लिए responsible होते हैं। अब हम बात करेंगे intercalary meristem की। तो intercalary meristem permanent tissues के बीच में होता है। ये या तो प्लांट के इंटरनोड्स में या फिर लीव्स के बेस पर पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स
प्लांट्स में होने वाली वर्टिकल ग्रोथ और लीव्स की रीग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लैटरल मेरिस्टेम्स रूट्स और स्टेम्स के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। ये प्लांट्स को विथ इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑलराइट, अगर हमें प्लांट, अब आपने देखा होगा कि कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जिनकी विथ इंक्रीज होती रहती है। ऑलराइट, तो ये किसकी वजह से होती है? ये होती है उनमें प्रेजेंट लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यूज। सो अभी जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां हमने ये जाना था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होने वाले कंटिन्यूअस सेल डिवीजन की वजह से कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फर्दर डिवाइड होते रहने की अपनी इस एबिलिटी को खो देते हैं और नए मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं बन पाते हैं। इस कंडीशन में परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। सो परमानेंट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से कंप्लीटली अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। ये परमानेंट टिश्यूज सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। परमानेंट टिश्यूज में पाए जाने वाले सेल्स का न्यूक्लियस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाए जाने वाले सेल्स के न्यूक्लियस के कंपैरिजन में प्रोमिनेंट नहीं होता है। परमानेंट टिश्यूज में पाए जाने वाले सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। वहीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं पाया जाता था, लेकिन इसमें पाया जाता है। ऑलराइट, परमानेंट टिश्यूज की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये भी है कि इन टिश्यूज के सेल्स में वेल डिफाइंड वैक्यूल पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वैक्यूल के प्रेजेंट होने से परमानेंट टिश्यू के नॉन डिवाइडिंग होने का क्या मतलब है? तो अगर आपको ये याद हो तो वैक्यूल्स के बारे में आपने ये पढ़ा है कि वैक्यूल वो सेल ऑर्गेनेली होता है जो सेल में प्रेजेंट होकर फूड और अदर मटेरियल्स स्टोर करता है और साथ ही साथ सेल को रिजिडिटी या जिसको हार्डनेस बोलते हैं वो प्रोवाइड करता है। तो अब आप ही बताइए कि जब परमानेंट टिश्यूज के सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली उनमें रिजिडिटी यानी हार्डनेस तो आएगी ही, और जब किसी सेल में रिजिडिटी होगी तो क्या वो सेल डिवीजन कर पाएगा? नहीं ना। तो यही रीजन है कि हम परमानेंट टिश्यूज को नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज भी बोलते हैं। एंड लास्टली हम ये कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यूज में पाए जाने वाले सेल्स की सेल वॉल थिक होती है क्योंकि इनकी सेल वॉल में सेलुलोज का ज्यादा अमाउंट में डिपोजिशन हो जाता है। सो हम परमानेंट टिश्यूज को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि परमानेंट टिश्यूज आर दोज ग्रुप ऑफ सेल्स formed by the continuous cell division of meristematic tissues which has lost its ability to divide and is permanently placed at the fixed position in plant body. Now, what is differentiation process? So this differentiation process is a process by which cells of meristematic tissues convert themselves into permanent tissues by taking fixed shape, size and function. Now we will talk about the types of plant tissues. So there are two types of permanent tissues present in plant body. Alright, the first one is simple permanent tissue and the second one is complex permanent tissue. So simple permanent tissue are those permanent tissue which are made up of only one type of cell, whereas complex permanent tissues are those permanent tissues which are made up of more than one type of cells. So here simple permanent tissues are further classified into three types, that are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So now let's discuss what this parenchyma tissue is. So parenchyma tissue प्लांट की पूरी बॉडी में पाया जाता है। पेरेनकाइमा टिश्यूज के सेल्स की सेल वॉल थिन होती है। इन थिन सेल वॉल्स की वजह से ये पेरेनकाइमा टिश्यूज सॉफ्ट होते हैं। सो जैसा कि हमने अभी जाना कि पेरेनकाइमा टिश्यूज प्लांट की पूरी बॉडी में पाया जाता है, तो ये टिश्यू जिस प्लेस में या प्लांट के जिस रीजन में पाया जाएगा वो उस तरीके का स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स की लीव्स और प्लांट्स के अदर ग्रीन पार्ट्स में पाए जाने वाले पेरेनकाइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, और आप सभी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाएगा। और क्लोरोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। सो पेरेनकाइमा इन पेरेनकाइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ऑलराइट,
जो इन ग्रीन लीव्स में जो पाए जाते हैं पैरेनकाइमा सेल्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, जिसकी वजह से पैरेनकाइमा सेल्स फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन पैरेनकाइमा टिश्यूज को, जो कि प्लांट्स की लीव्स और प्लांट्स के अदर ग्रीन पार्ट्स में पाए जाते हैं और जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इन्हें क्या कहेंगे हम? इन्हें हम क्लोरेनकाइमा कहेंगे। सो क्लोरेनकाइमा is nothing but it is a type of parenchyma tissue which contains chloroplast in itself. All right. So parenchyma tissues, अब parenchyma tissues फ्रूट्स के पल्प में भी पाए जाते हैं। फ्रूट्स में पाए जाने वाले parenchyma tissues में फ्रूट शुगर और स्टार्च स्टोर्ड होती है। इन parenchyma tissues को स्टोरेज parenchyma कहा जाता है। अब पैरेनकाइमा टिश्यूज जो है ना, वो फ्लोटिंग प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। सो पैरेनकाइमा टिश्यूज के सेल्स, इन पैरेनकाइमा टिश्यूज के सेल्स के बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और ये इंटरसेलुलर स्पेसेस एयर से भरी होती हैं। ये प्लांट को पानी में फ्लोट करने में हेल्प करती हैं। इनमें जो एयर भरी होती है, ये किस में हेल्प करती है? प्लांट को पानी में इजिली फ्लोट करे रहने में हेल्प करती है। इसीलिए फ्लोटिंग प्लांट्स में पाए जाने वाले पैरेनकाइमा टिश्यूज को एरेनकाइमा टिश्यूज कहा जाता है। हाँ जी, एरेनकाइमा टिश्यूज। ऑलराइट, ऑल इन ऑल हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट्स में पाया जाने वाला पैरेनकाइमा टिश्यू फोटोसिंथेसिस और फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही साथ फ्लोटिंग प्लांट्स में भी ये पाया जाता है। और ये पैरेनकाइमा टिश्यूज लिविंग सेल्स से बने होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द कोलेनकाइमा टिश्यू। सो प्लांट्स में पाए जाने वाले कोलेनकाइमा टिश्यूज प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन टिश्यूज की इसी फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से ही प्लांट्स तेज आंधी, बारिश से बचने के लिए इजिली बेंड हो जाते हैं। ये कोलेनकाइमा टिश्यूज लीव्स के स्टॉक्स में और फ्लावर्स में पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा टिश्यूज के सेल्स भी लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है वो परमानेंट पैरेनकाइमा सेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा थिक होती है। कोलेनकाइमा टिश्यूज के सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल कम होता है, इसलिए इनके सेल्स एक दूसरे से स्लाइटली पैक्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के लास्ट टाइप के बारे में, जो है स्क्लेरेनकाइमा। आपको इनके सिंपल परमानेंट टिश्यू और जितने भी प्लांट टिश्यूज हैं, इनके बारे में और अच्छे से जानने को मिलेगा। वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा वीडियो और अपलोड किया गया है, जिससे कि आप लोग इसको और अच्छे से इजीली समझ सकते हैं। सो अब हम जानेंगे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। अभी तक हमने जो दो सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा, यानी कि पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ा, तो ये दोनों टिश्यूज लिविंग सेल से मिलकर बने होते थे। लेकिन प्लांट्स में पाया जाने वाला ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू कंप्लीटली डेड सेल से मिलकर बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की सेल वॉल्स बाकी दोनों टिश्यूज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थिक और हार्ड होती है, जो कि इस टिश्यू को हार्ड बना देती है। इसलिए स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का मेन फंक्शन प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज नट्स के हार्ड शेल्स और कोकोनट के हस्क में पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के सेल्स लंबे और पतले होते हैं। ये टिश्यूज प्लांट्स के स्टेम्स में, लीव्स की वेन्स में और सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग में पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में एक जरूरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये टिश्यूज डेड सेल्स से बने होते हैं और इनकी सेल वॉल बहुत हार्ड और थिक होती है। क्या आप जानते हैं कि इनकी सेल वॉल इतनी हार्ड और थिक क्यों होती है? सो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ लिग्निन। Now what this lignin stands for? So this lignin is a type of substance which provide rigidity to the cells. It acts as a cement for the cells. Now students, अब यहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया गया है जिससे कि आप लोग प्लांट टिश्यूज को और अच्छे से समझ सकते हैं। Plant tissues. We know that the fundamental unit of life is a single cell. But all higher organisms are made up of more than one cell, also called as multicellular organism. In multicellular organisms, similar kind of cells group in a specific tissue to perform particular functions,
which support the efficient functioning of organisms by providing division of labor. Examples are xylem, phloem, etc. The next level of organization forms organs combining different tissues. Examples include root, stem, leaf, etc. There are two types of plant tissue. First one is meristematic tissue, which has dividing cells. The cells are very active, have dense cytoplasm and distinct nucleus to carry out division. They have thin walls and easy to divide. They are small or no vacuoles, as do not need to store anything for long. According to their location, there are three types of meristems. Apical meristem is present at the root and the shoot apex and is responsible for the plant height. Intercalary meristem is present at the base of leaves and nodes. Lateral is present in sides of the stem and increases the girth of the stem. Another type of plant tissue is permanent tissue. How are these formed? Older meristematic tissues, which lose the ability to divide, get differentiated to permanent tissues. They are again of two types: simple, which are made up of same type of cells, and complex, which are made up of different types of cells, but performing the same function. Now, on the basis of adaptation in cell structure and their function, simple permanent tissues are further divided in three types. Number 1, parenchyma, again, has three subclasses. Parenchyma has oval cells with dense cytoplasm. They may or may not be loosely packed. The ones with chlorophyll are called chlorenchyma and help in photosynthesis. Some have air spaces and are present in aquatic plants for buoyancy. They are called as aerenchyma. Parenchyma are found all over the plant body and help in storage, photosynthesis in some, and giving buoyancy in some, for example aquatic plants. Number 2. Collenchyma are polygonal cells with thickened corners. They provide flexibility to plants so that parts can bend without breaking. For instance, they are at petiole, leaf stalk, etc. Number 3 is sclerenchyma. These are dead cells with no protoplasm. They have thick cell walls and the cell lumen is lost. The main function is to provide mechanical support. They form the hard covering of seeds, jute, wood fibers and husk of coconut. So students, for now this is the end of the first part of this video. In our next video on the same topic, we will discuss about the epidermis, stomata, animal tissues and their types. Next video might be the end of this topic, tissues. So I hope you liked my today's video. If you like this video, so please subscribe and like my channel and share this video also. And don't forget to press the bell icon. Thank you.